السلام علیکم، خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دسمبر 2023 کا پیپر UGC نیٹ کا، اور اس میں کچھ سوالات دیکھیں گے اور سارے سوالات کو تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو کیا ہے ایکسٹرا میں بہت ساری چیزیں معلوم ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گا۔ تو یہاں پہلا کوشچن ہے، یہاں پہ TS ایلیٹ کی سنِ پیدائش اور وفات کے تعلق سے پوچھا گیا تھا۔ تو TS ایلیٹ یہ جو ہے نظریاتی نقاد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1888 میں اور وفات ہوئی 1965 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ امریکہ کے صنعتی شہر سینٹ لوئی میں کیا ہے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ٹیچرز کی حیثیت سے کیا تھا۔ انہیں نوبل پرائز ملا، یہ بھی یاد رکھیں۔ کب ملا تھا انہیں نوبل پرائز؟ تو 1948 میں ملا تھا۔ اور ان کا ایک قول ہے جسے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ قول کیا ہے؟ جب تک ادب رہے گا اس وقت تک تنقید کے لیے جگہ باقی رہے گی۔ ادب رہے گا اس وقت تک تنقید کے لیے جگہ باقی رہے گی، کیونکہ تنقید کی بنیاد بھی اصل میں وہی ہے جو خود ادب کی ہے۔ یہ ان کا کیا ہے قول ہے۔ اس کے بعد بڑھیں گے ہم دوسرے کوشچنز کی طرف۔ دوسرے کوشچنز میں تھا مصنف اور ان کے تصانیف دیے ہوئے تھے اور انہیں کیا ہے جوڑ کر صحیح جواب بتانا تھا، نشاندہی کرنی تھی۔ تو دیکھیے سر سید احمد خان، ان کی کتاب کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، اور یہاں پہ الطاف حسین حالی کی ہے تریاق مصوم۔ یہ ہوگا جیسے آپ کو جو چیز معلوم ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ کہ کہاں سے آنسر نکلتا ہے۔ اس طرح کے سوالات کو ڈیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سر سید احمد خان کی کیا ہے اسباب بغاوت ہند، تو یہاں پہ C کا 4 کس آپشنز میں ہے یہ دیکھیں۔ تو C کا 4 اس آپشنز میں نہیں ہے، اسے ڈیلیٹ کر دیں گے ہم۔ 3 آپشنز میں ہے یہاں پہ۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ہے الطاف حسین حالی کی کتاب کا A ہوگا۔ B کا A کس میں ہے دیکھیں، B کا 2 یہاں پہ ہے اور B کا 3 یہاں پہ ہے، یہاں سے نکل جائے گا ہمارا آنسر۔ شبلی نعمانی کی کتاب ہے یہاں، شبلی نعمانی کی کتاب ہے یہاں پہ A کا 2، یعنی اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، یہ ان کی کتاب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد B کا 1 ہو گیا، سر سید احمد خان کا B کا 4 ہوگا، اور مولوی ذکاء اللہ کا کیا ہے تاریخ ہندوستان۔ تو یہ کتابیں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہاں پہ ہم۔ اس کے بعد ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی ہمیں نشاندہی کرنا تھی۔ تو پہلے میں ہے جلاوطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ان کا افسانہ ہے مشترکہ تہذیب کے بکھرنے کی کہانی ہے۔ یہاں پہ رشتوں ٹوٹنے، خاندان کے بکھرنے کے بارے میں یہاں پہ اس افسانے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے میلہ گھومنی، علی عباس حسینی کا کیا ہے یہ افسانہ ہے، یہ افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں شامل یہ افسانہ بھی ہے، تو یہ بھی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس افسانوی مجموعے میں کتنے ہیں؟ کل 21 افسانے کے ہیں شامل ہیں۔
और मजमूए का मौजू है सिन्फ़ नाज़ुक पर होने वाला जुल्म के बारे में। इसके बाद यहाँ पे इसमें ए और बी हमारा दुरुस्त होगा। नूर व नार ये कृष्णचंद का नहीं है, आगे देख लेंगे किसका है। और बिच्छू फूफी ये इस्मत चुगताई का है, राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शंस बन जाएगा ए और बी। ए और बी कै में है, देखिए 4 इसका राइट ऑप्शंस होगा। देखिए पहले सवाल में टी.एस. एलियट के ताल्लुक़ से था जो हमारा पहला सवाल, तो उनके मज़मून के ताल्लुक़ से भी तनक़ीद में अक्सर पूछा जाता है। इसे हम यहाँ पे नीचे देख लेंगे, ये मज़ामीन हैं इनके टी.एस. एलियट के। तो मज़ामीन देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसका मज़मून है। तो पहला है यहाँ पे शायरी का समाजी मनसब, शायरी की 3 आवाज़ें, किसका मज़मून है, इस तरह से सवाल बन सकता है। शायरी की मौसीकी ये भी, और शायरी और ड्रामा ये भी किसका मज़मून है, टी.एस. एलियट का। और रिवायत और इनफरादी सलाहियत ये भी किसका है, तो टी.एस. एलियट का। क्लासिक क्या है, ये इन्हीं का मज़मून है। मज़हब और अदब ये किसका मज़मून है, तो टी.एस. एलियट का। तजुर्बा और तनक़ीद ये भी इन्हीं का है। और तनक़ीद के हुदूद ये भी इन्हीं के हैं, टी.एस. एलियट के। और इनके एक रिसाले का नाम है क्राई टैब्रेन, कुछ इस तरह से नाम है, देख लें आप। इन्होंने रिसाला क्या है जारी किया था, और ये 1922 में जारी किया था, इसे भी याद रखें आप। तो ये थे इनके कुछ मज़ामीन जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है, काफ़ी अहम है ये चीज़ें आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे जो मेला घूमनी, ये अली अब्बास हुसैनी का जो अफसानवी मजमुआ है उसमें शामिल अफसाने, देखिए यहाँ पे ये सारे अफसाने हैं जो आप इसे वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शामिल करने का एक मकसद ये है कि यहाँ पे इस अफसाने में क्या है, आप देखिए कफन, ये भी क्या है, अफसाना शामिल है। तो कफन मुंशी प्रेमचंद का भी है, इसलिए यही बताने के लिए यहाँ पे आप बताया गया है ये। और नूर और नार ये किताब है परवेज़ की। इसके बाद यहाँ पे है ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, हमें सही ज़ुमरों की क्या है, निशानदही करना है। पहले में है यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक ने नाम दियो मालिक के उन्वान से खाका लिखा, तो ये क्या है, राइट हो जाएगा, दुरुस्त होगा। फिर इसके बाद है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम नफसाने रफ्ता है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ भी क्या है, हम नफसाने रफ्ता, ये इन्हीं का है। इसके बाद यहाँ पे है इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई का क्या है, खाका, अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा, ये भी दुरुस्त होगा। और क़ायदे बेक़ायदे फ़िक्र अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये सी इनका दुरुस्त ऑप्शंस होगा कि दोज़खी के नाम से इस्मत चुगताई ने अपने भाई अजीम बेग का क्या है, खाका लिखा। और क़ायदे बाक़ायदे ये क्या है, इन्हीं की किताब नहीं है बल्कि किसकी है, ये खाकों का मजमुआ किसका है, ये है शौकत थानवी का है। ये किताब है शौकत थानवी की, ये याद रखिए आप, शौकत थानवी की है। और इनके ताल्लुक़ से देख लें, इनका असल नाम था, इनका शौकत थानवी का असल नाम है मोहम्मद उमर है, और इनके वालिद का नाम है सिद्दीक़ अहमद। और इनकी जो जाए पैदाइश है शौकत थानवी की, वो है बांद्रा में 1905 में इनकी क्या है, पैदाइश हुई। और लाहौर में 1963 में इनकी 1963 में इनकी क्या है, वफ़ात हुई। मौजे तबस्सुम, बहरे तबस्सुम, इस तरह के क्या हैं इनकी किताबें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे
اے اور سی ایک آپشنز کیا ہے درست ہوگا۔ یہاں پہ درج ذیل میں کون سا افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو دانا ودام انہی کا ہے، کوکجلی بھی انہی کا ہے، لمبی لڑکی بھی انہی کا ہے، سڑک کے کنارے ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے سڑک کے کنارے۔ ہم نفسان رفتہ جو ابھی اوپر سوال گیا ہے، اس میں کل کتنے کیا ہے 7 شخصیات پر انہوں نے خاکے لکھے ہیں رشید احمد صدیقی نے۔ تو وہ 7 لوگ کون سے ہیں دیکھ لیں۔ شفیق الرحمان، یہ مولانا سید سلیمان ندوی، اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبدالحق اور نواب محمد اسماعیل خان، اس کے بعد ہے مولانا ابوالکلام آزاد، پروفیسر احمد شاہ بخاری اور قندر۔ یہ ان کے کیا ہے 7 لوگوں پر انہوں نے خاکے لکھے۔ سڑک کے کنارے یہ منٹو کا ہے، ان کا نہیں ہے بیدی کا۔ اور کنارے کے سر ورق پر کیا ہے یہ دیا ہوا ہے، یہ ننھے چراغ، یہ ننھے سردار صرف اپنے لیے چمکتے، جو کچھ یہ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ سر ورق پر ہے اور اس کی فہرست میں اتنے افسانے کے ہیں شامل ہیں۔ سڑک کے کنارے پر خدا کی قسم بھی انہی کا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس آباد خرابے میں یہ کس کا ہے؟ اس آباد خرابے میں یہ ہے اختر الایمان کا۔ تو اے کا کیا ہوگا 3 ہوگا، اے کا 3 اس میں نہیں ہے، اسے ڈیلیٹ کریں گے۔ اے کا 2 اس میں ہے، اے کا 4 اس میں ہے، اس طرح سے آپشن 2 اس کا درست ہوگا۔ خواب باقی ہے، یہ کیا ہے آل احمد سرور کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ غبار خاطر، یہ کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور اردو مولا یہ ہے مرزا غالب کی۔ اس طرح سے جڑانے کا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، ہمیں صحیح زمروں کی کیا ہے نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے 2 زمرے میں، پہلا ہے یہاں میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد میر کا انتقال 1812 میں لکھنؤ میں ہوا، یہ غلط ہو جائے گا، بی یہاں سے کٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اے ہوگا، اس میں اے نہیں ہے، اسی لیے ڈیلیٹ کر دے اسے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ سی یا پھر ڈی ہوگا۔ تو میر دلی میں اپنے ماموں خان آرزو کے ساتھ رہے، یہ بھی یہاں پہ دیے ہوا ہے میر دلی میں اپنے ماموں خان آرزو کے ساتھ رہے، یہ درست ہوگا۔ اور اس میں اے اور سی اس کا رائٹ آپشنز ہوگا، یعنی 4 درست ہوگا۔ اور میر اپنے معاشر غالب پر بہت قدر کرتے تھے، یہ کیا ہے رانگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم یہاں پہ کس ڈرامے میں چھند، ٹھمری اور بسنت اس طرح کے کیا ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ ایک ہے آگرہ بازار میں، 2 ہے اندر سبھا میں، 3 ہے سہاگ میں، اور 4 ہے یہودی کی لڑکی میں۔ تو اندر سبھا میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اندر سبھا مغرب کے اکثر ڈراموں سے بہتر ہے، یہ کہا تھا کس نے؟ حسرت موہانی نے۔ اور یہاں پہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے، تماشا ہے بظاہر بزم محفل، تو یہ امانت لکھنوی کا ہے، اور ان کا پورا نام ہے سید آقا حسن رضوی امانت لکھنوی ہے، اور اسے مرتب کیا ہے نور الہی و محمد عمر نے۔ اس کے بعد ہے اندر سبھا سے ایک دوسری بھی تالیف ہے جو ایم ایس جوہر کی ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں، کبھی آپشنز میں پوچھا جا سکتا ہے سیم نام سے۔ تو دیکھیں یہاں پہ دیے ہوا ہے چھند، یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹھمری، اس طرح سے بسنت، یہ الفاظ اندر سبھا ڈرامے میں آئے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان
नगमा इल्हाम है, तो ये राइट होगा। शाद अजीम आबादी की गज़लों का दीवान नक्श व निगार है, ये नहीं होगा। यहाँ से बी उड़ गया। इसके बाद है शाद अजीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है, तो ये भी राइट होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे शाद अजीम आबादी का असल नाम गुलाम मोहम्मद अख्तर है, ये रॉन्ग होगा। तो डी यहाँ से भी उड़गा, यहाँ से भी उड़गा, तो बच गया हमारे पास सी। ए और सी इसका दुरुस्त आंसर होगा। इस तरह के सवालात को इस तरह से ही डील करना होता है। इसके बाद यहाँ पे है एक शेर दिए हुआ, वो बताना है आपको किसका है। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ये शेर किसका है बताना है। एक है यास यगाना चंगेज़ी, दो है ताक दहलवी, तीन है हसरत मोहानी, चार है शाद अजीम आबादी। तो ये हसरत मोहानी का शेर है। यहाँ पे दिए हुआ है जिस नज़म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है शहर आशोक। वास्तव में क्या होता है, ये सिनफी है जिसमें बेजारी का इजहार किया जाता है और ये लिखी जाती है आमतौर पर मुसद्दद और मुसम्मन की हैयत में। बेवफाई, तकाफुल वगैरह की शिकायत इसमें की जाती है। इसके बाद है खमरियात। खमरियात में क्या है, शराब नोशी का ज़िक्र होता है अशारों में, और इसके लिए मशहूर है रियाज खैर आबादी। इसके लिए मशहूर है, इन्हें क्या है खमरियात का इमाम भी कहा जाता है, रियाज खैर आबादी को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की हमें निशानदही करना है। तो पहले हैं यहाँ पे एक में है, ए में है मखदूम का पहला मजमूए कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा गुलतर है। देखिए हमारी ट्रिक थी मखदूम सुर्ख गुल बस तो ही ला, तो इस तरह से सुर्ख से सुर्ख सवेरा और गुल से गुलतर होगा और बस से बस बिसाते रक्स। इस तरह से हमने ट्रिक बनाई है। सारे शेरी मजमूए पर अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको क्या है इस तरह के सवालात हल करना आसान हो जाते हैं। तो ए इसमें आएगा, यहाँ पे ए नहीं है इसे डिलीट कर दे, ए यहाँ पे भी नहीं है इसे डिलीट कर दे। अब ए के बाद बी या फिर डी होगा। बी में क्या है, मजाज की शेरी मजमूए खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम। तो ये क्या है, इनका नहीं है बल्कि किसका है, सरदार जाफरी का है, तो बी नहीं होगा। तो आंसर हमारा 3 होगा इसमें। और अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए क्या है, तलखियाँ और परछाइयाँ हैं। तो तलखियाँ परछाइयाँ ये साहिर लुधियानवी के हैं, अली सरदार जाफरी के नहीं है, ये भी रॉन्ग होगा। जज्बी का पहला शेरी मजमूआ फरोज़ा और दूसरा है सुकन मुख्तसर, तो ये दुरुस्त होगा। ए और डी इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे तारीख़ अशात के एतबार से नावलों की सही तरतीब लगानी थी, जिसमें क़ुर्रतुल आइन हैदर के नावल दिए हुए हैं। आग का दरिया, इसके बाद है चांदनी बेगम, ये भी क़ुर्रतुल आइन हैदर का नावल है, जिसमें क्या है ज़िंदगी, ज़माना, ज़मीन, वक्त, मौत, इस तरह के ये इसका मौजू है। मेरे भी सनम खाने, ये भी क्या है क़ुर्रतुल आइन हैदर का ही है और ये तक़सीम हिंद के नतीजे में लिखा हुआ है और इसका मौजू है अफराद की, इसका बदहाली इसका मौजू है। फिर आखिर शब के हम सफ़र, ये भी क़ुर्रतुल आइन हैदर का है और इसी पर इन्हें क्या है अदब का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड से क्या है नवाजा गया है। तो सही तरतीब में आएंगे मेरे भी सनम खाने, उसके बाद आएंगे यहाँ पे आग का दरिया आएगा, उसके बाद आएगा आखिर शब के हम सफ़र और बाद में आएगा यहाँ पे चांदनी बेगम, इस तरह से।
चांदनी बेगम। सी इसका दुरुस्त ऑप्शंस होगा और CADB इस तरह से दुरुस्त होगा। इसके बाद आगे हैं 5 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को क्या कहते हैं। तो देखिए, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बा में 4 होते हैं और मुक़म्मस में क्या है 5 मिसरे होते हैं, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। ये ऑप्शंस यहाँ पे होगा मुक़म्मस। इसके बाद आगे है यहाँ पे ये, इसके बाद दिया हुआ है ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की हमें निशानदही करना है। तो पहले में है क़द व ख़ामूसवी के खाकों का मजमुआ है, ये राइट होगा। इसके बाद यहाँ पे है शीश महल, ये क्या है रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, ये रॉन्ग होगा। बी यहाँ से उड़ा दे आप इसे। यहाँ पे ये किसका है शीश महल, ये है शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीर करदा खाका है, ये दुरुस्त होगा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में उन्वान से सर सैयद अहमद ख़ान का खाका लिखा। तो ये यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शंस यहाँ होगा A और C दुरुस्त होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखें किताबें दिए हुए हैं, दास्तान और दास्तान निगार दिए हुए हैं, उन्हें जोड़ना है। तो यहाँ पे है, पहले देख लें मज़हबे, आपको क़िस्सा महर व महा बेताल 25वीं मज़हब इश्क और गुलशन हिंद। तो गुलशन हिंद सभी को मालूम है, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। तो डी का क्या होगा 3, डी का 3 जिसमें है उसे आप चेक करें। तो देखिए डी का 4 यहाँ है, डी का 1 यहाँ है और डी का 4 यहाँ है। तो ये इसे डिलीट कर देंगे आप। यहाँ पे देखें हमारा ऑप्शन 3 बनेगा। और मज़हब इश्क क्या है निहाल चंद लाहौरी का है, ये होगा सी का 4। इसके बाद यहाँ पे है क़िस्सा महर व महा, ये हमारा होगा हैदर बख्श हैदरी का होगा और बेताल 25वीं मज़हर अली क़ां वाला का होगा। इस तरह से हमें क्या है ऐसे सवालात को हल करने की प्रैक्टिस करना होगी। इसके बाद यहाँ पे है ज़ैल के किरदार का ताल्लुक़ उर्दू के किस ड्रामे से है। तो नौशबा, राहिब, वज़ीर, फरीदा। एक है यहूदी की लड़की, मरक्का, शबाब, इंद्र, अनारकली, ज़ुहाक। तो इसका ताल्लुक़ है नौशबा, राहिब और वज़ीर, इसका ताल्लुक़ है ज़ुहाक का। ज़ुहाक से ताल्लुक़ है मोहम्मद हसन का है ज़ुहाक ये ड्रामा, और इसका इंतसाब इन्होंने किया है दबे कुचले अवाम के नाम 6 मनाज़िर पर, ये क्या है मुश्तमिल है और पहली बार असरी अदब में शाये हुआ 1977 में। और ये लोग जिनको खुदा बनने की नहीं ख्वाहिश, ये लोग यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये मोहम्मद हुसैन आज़द का है और मोहम्मद हसन का है। ज़ुहाक ये क्या है इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की क्या है कहानी है। इसमें किरदार थे ज़ुहाक जो कि फ़ौजी अफसर है, नौशबा रक्कासा है, फरीदो शायर है, बूढ़ा जज है और वज़ीर क्या है राहिब है। बाकी क़ैदी दरबारी रक्कासाई भी और सिपाहियाँ भी है इसमें। अभी के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छे से स्टडी करें और